So, today we will discuss inverse Laplace transforms. We have already discussed inverse Laplace transforms. So, today we will discuss this inverse, how can we evaluate inverse Laplace transforms. So, first we define what is inverse Laplace transforms and then method of finding the inverse Laplace transforms. So, we have few methods like method of partial fraction. Okay, today we will discuss only this method, clear, and then we will discuss few important properties of inverse Laplace transforms. So, with the help of these properties we can also evaluate the inverse Laplace transforms. Then we have convolution theorem. So, with the help of this theorem we can also find the inverse Laplace transforms. So, first define what is inverse Laplace transforms. So, if LFT is equal to F bar S, okay, then Ft is called inverse Laplace transform or inverse transform or simply inverse of F bar S. Okay. So, if we have given Laplace transforms of a function which is equal to F bar S, clear, then this Ft is called inverse Laplace transforms, and we write Ft is equal to L inverse F bar S. Okay. We write Ft is equal to L inverse F bar S, and this L inverse is known as inverse Laplace transform operator, clear. L inverse is known as inverse Laplace transform operator and is such that L inverse is equal to L inverse L is equal to 1. Okay. So, in these type of problems what happened, F bar S is given and Ft is to be determined. Okay. और ऐसा भी नहीं है कि F बार अगर दिया हो, ठीक है, तो आप हर प्रॉब्लम में इनवर्स कैलकुलेट करोगे, ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्लियर. सो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ F बार S नीड्स नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल F बार S. ओके, तो जरूरी नहीं है कि अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स अगर इवेलुएट हो पाता हो तो आप इनवर्स कैलकुलेट कर पाओगे, जरूरी भी नहीं है, ठीक है. And we have few methods for finding the inverse Laplace transforms. We have use of partial fractions or method of partial fractions, use of some important properties we can evaluate the inverse Laplace transforms, and with the help of convolution theorem we can also evaluate the inverse Laplace transforms, and use of even Laplace transform table we can also find the inverse Laplace transforms. And today we will discuss only method of partial fractions. Okay. So, what is method of partial fractions? To find the inverse transform, we first express the given function of S into partial fraction. ठीक है, तो अगर आपको इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले काम ये है कि आपको F बार S दे रखा हुआ है, आपने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में वो करना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं, क्लियर. वो कैसे बनाने हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, एंड दैट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, कि उसके पार्शियल फ्रैक्शंस को कैसे बनाना है और उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करना है, राइट. सो विच विल देन बी रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स. तो जब आप पार्शियल फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दोगे, उसके बाद जब आप इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लोगे, ठीक है, तो आपने वहां पर कुछ स्टैंडर्ड जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं उनका यूज करना है, ठीक है. इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस, ठीक है, उनका यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो पहला स्टेप क्या हुआ, F बार S आपको दे रखा होगा, उसके पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है, क्लियर. और उसके बाद आपने टेकिंग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स और फिर आपने जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस है उनका यूज करना. वो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस कौन से हैं, ठीक है. दैट वन इज, फर्स्ट वन इज वी नो L1 इज इक्वल टू 1 over S. दिस मींस L इनवर्स 1 over S इज 1, क्लियर. आपने ये कैलकुलेट करके देखा हुआ है, ठीक है ना. इन प्रीवियस स्लाइड्स वी हैव प्रूव्ड दैट L1 is equal to 1 over S, then L inverse 1 over S is 1. Now we know L e raised power at is equal to 1 over S minus A. So L inverse is 1 over S minus A is equal to e raised power at, clear. We know L t raised power n is equal to n factorial over S n plus 1, clear. This means L inverse 1 over S power n is equal to t raised power n minus 1 over n minus 1 factorial, n is 1, 2, 3 and so on. यहाँ अगर मैं n लिखूंगा तो यहाँ n minus 1 factorial हो जाएगा, ठीक है. तो here Sn, so n minus 1 factorial and t raised power n minus 1 accordingly. And L inverse 1 over S minus A power n is equal to e raised power at t raised power n minus 1 divided by n minus 1 factorial, right. Similarly, we know Laplace transforms of sin at, which is equal to a over s square plus a square. Then L inverse 1 over s square plus a square is
1 over a sin a t. Clear? Laplace transform of cos a t is s over s square plus a square. We know this expression. Then L inverse s over s square plus a square is equal to cos a t. Clear? We know L sin h a t is a over s square minus a square. So L inverse 1 over s square minus a square is 1 over a sin hyperbolic a t. Okay. Similarly, Laplace transform of cos hyperbolic a t is s over s square minus a square. Then L inverse is equal to L inverse s over s square minus a square is cos hyperbolic a t. Similarly, L inverse 1 over s minus a square plus b square is 1 over b e raised power a t sin b t. Okay. L inverse s minus a over s minus a square plus b square is equal to e raised power a t cos b t. तो इस तरह से कुछ और इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स हैं एलिमेंट्री फंक्शंस की, उनको भी आपने याद रखना। तो ये सारे एक्सप्रेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले आप ये देख लो कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से बन रहे हैं और वहाँ कैसे इनको प्रूव किया गया है, ठीक है। फिर जब आपको ये प्रोसेस पता होगा तो ये आप आसानी से याद कर सकते हो, राइट। सो बाय यूजिंग दीज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ओके, फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। So a fraction of the form a naught s power m plus a1 s power m minus 1 and so on plus am divided by b naught s power n plus b1 s power n minus 1 plus and so on plus bn, in which m and n are positive integers, is called a rational algebraic function. Is algebraic function, rational algebraic function. Okay, when numerator is of lower degree than the denominator, then it is called a proper fraction. Then it is called a proper fraction. Numerator is lower degree than denominator. Clear? अगर इसकी पावर कम है, इसकी ज्यादा है, तो आपका ये proper fraction बनेगा, right? Now to resolve a given fraction into partial fraction, we first factorize the denominator into real factors. रियल फैक्टर्स। तो आपको क्या करना है, आपको इस टाइप की प्रॉब्लम दे रखी होगी, आपने डिनोमिनेटर्स के लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। पहला स्टेप ये करना है आपने, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है उसके आपने रियल फैक्टर्स डेवलप करने हैं, राइट। देन दीज विल बी ईदर लीनियर और क्वाड्रेटिक। देखिए ये s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी भी हो सकते हैं। ये एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 इस टाइप के भी हो सकते हैं। ये लीनियर भी हो सकते हैं और क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, राइट। सो दीज विल बी आइदर लीनियर और क्वाड्रेटिक एंड सम फैक्टर s रिपीटेड। इसका मतलब यह कि आपका ऐसा भी रिजल्ट हो सकता है s माइनस ए पावर 3, s माइनस बी पावर 4, इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। तो लीनियर भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं एंड सम फैक्टर्स s रिपीटेड, ओके। And we know from algebra that a proper fraction can be resolved into a sum of partial fractions such that, तो हम आप कैसे आगे प्रोसेस करेंगे, कैसे उसके partial fractions बनाएंगे, ठीक है। So one first case is to a non-repeated linear factors. What happened? So in case of non-repeated linear factors, if s minus a occurring once in the denominator, then partial fraction is of the form a divided by s minus a. सपोज मैं f बार s आपके पास ये एक्सप्रेशन दे रहा हूं, इसके आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे, ठीक है। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे, a डिवाइडेड बाई s माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाई s माइनस b एंड c डिवाइडेड बाई s माइनस c। इस तरह से आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस को बनाना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, अकरिंग वंस, देखिए पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। जब पावर 1 है तो आपने इस ढंग से इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं और फिर पर्पस हमारा रहेगा ए बी सी कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि ए बी सी को कैसे कैलकुलेट करना है, बट पहले ये लर्न करिए कि पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने कैसे हैं। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आपने ये प्रोसेस यूज करना है फॉर ए नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। सपोज वी हैव रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, इफ s minus a power r occurring r times in the denominator, then the sum of r fractions is of the form. जब इस टाइप में डिनोमिनेटर में टर्म्स आएंगी तो आपने ऐसे करना, a1 डिवाइडेड बाई s माइनस a प्लस a2 डिवाइडेड बाई s माइनस a स्क्वायर, और उसके बाद a3 डिवाइडेड बाई s माइनस a क्यूब प्लस एंड सो ऑन ar डिवाइडेड बाई s माइनस a पावर r। तो इस तरह से आपको ये पार्शियल फ्रैक्शंस को डेवलप करना है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, Now see 4s plus 5 divided by s minus 1 स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर है,
दैट वन इज रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो ये बनेगा a ओवर s माइनस 1 प्लस b ओवर s माइनस 1 स्क्वायर, ये इस तरह से। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, a और b कैलकुलेट करना है। और ये कैसे कैलकुलेट करना है, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स में एक अलग प्रोसेस है और इस टाइप की प्रॉब्लम में एक अलग प्रोसेस है, ठीक है ना, वो हम अभी लर्न करेंगे। नाउ सेकंड, टू ए नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, सपोज s square plus as plus b occurring once in the denominator, then a partial fraction of the form as plus b divided by s square plus as plus b। तो अगर क्वाड्रेटिक टाइप की टर्म्स आ रही हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो आपको इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस को बनाना है। You have to evaluate the value of a as well as b. Clear? For example, s over s4 plus 4a power 4. Suppose ये आपके पास f bar s दे रखा हुआ है और डिनोमिनेटर के मैंने दो फैक्टर बना लिए, s डिवाइडेड बाई दिस फर्स्ट फैक्टर, दिस सेकंड फैक्टर, ठीक है। अब ये दो फैक्टर है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये दोनों डिफरेंट है। क्लियर? तो आपके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे, as प्लस b डिवाइडेड बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस c s plus d divided by second factor. So in this way you can develop a partial fraction, okay, of this f bar s. And in case of repeated quadratic factor s square plus as plus b power r occurring r times in the denominator, same process follow karna apne, okay. So denominator corresponds to the sum of r partial fractions of the form a1 s plus b1 divided by s square plus as plus b plus a2s plus b2 divided by this square plus and so on ars plus br divided by s square plus as plus b power r। तो इस तरह से आपने जैसे यहाँ पे ये इंक्रीज करते चले गए, यहाँ पर भी आपने इंक्रीज करते चले जाना है और ये जो न्यूमरेटर है वहाँ इस टाइप की टर्म्स को इंक्लूड करना है, ठीक है, और यहाँ पर इस टाइप की टर्म्स को इंक्लूड किया गया था, ठीक है ना। और पर्पस क्या रहेगा इसके बाद, a1 a2 a3 और यहाँ पर a1 b1 a2 b2 ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिटरमिन द अननोन्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 लाइक दिस, ये हमारा मेन पर्पस है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि आपने जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, और फैक्टर बनाने के बाद इस टाइप की फॉर्मेशन में इसको लिखना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो कांस्टेंट्स है उनको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। जब वो इवैल्यूएट हो जाएंगे फिर आपने इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। नाउ मेथड टू ऑब्टेन द पार्शियल फ्रैक्शंस, ये मेथड क्या है, टू ऑब्टेन द पार्शियल फ्रैक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स s minus a, non repeated linear factors s minus a in the denominator. In that case put s is equal to a, put s is equal to a everywhere in the given fraction except in the factor s minus a itself. अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे इसको रखना है। देखिए ये f बार s हमारे पास दे रखा हुआ है, ठीक है, इसके फैक्टर बने, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे a ओवर s माइनस 1 प्लस b ओवर s माइनस 2 प्लस c ओवर s माइनस 3। क्लियर? तो एक बी सी कैसे कैलकुलेट करना है, जब आप ए कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो s इज इक्वल टू 1 की वैल्यू यहां सब में आपने पुट करनी है एक्सेप्ट s माइनस 1, एक्सेप्ट x माइनस 1। देखिए 2 एंड s इज इक्वल टू 1 1 स्क्वायर माइनस 6s1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 3, इसको आपने छोड़ देना है तो आपकी वैल्यू a की बनेगी 1/2। So the value of this constant a is evaluated like this way. Clear? So put s is equal to a, put s is equal to 1 everywhere in the given fraction except in the factor s minus a itself. Similarly you can calculate b, similarly you can calculate c and substitute here. तब आपके पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगे। एक तो ये, और ये प्रोसेस चलेगा जब आपका ये पहला केस है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। क्लियर? नाउ सेकंड, in all other cases equate the given fraction to the sum of the suitable partial fractions in accordance with 1 to 4 above, and having found the partial fractions corresponding to the non repeated linear factors by the above rule। ठीक है, सपोज मैं अब यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स कोड करके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल 4s प्लस 5 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 स्क्वायर, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे, a ओवर s माइनस 1 प्लस b ओवर s माइनस 1 स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे। ठीक है, अब मैं इस पे बात आता हूं। s ओवर s स्क्वायर s4 प्लस 4a पावर 4 इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई, ये डिनोमिनेटर में दो फैक्टर बन गए और इसके पार्शियल फ्रैक्शंस इस टाइप से बन गए। अब क्वेश्चन ये है कि a b और यहां पर a b c d ये कैसे कैलकुलेट करने हैं,
ये मैं थर्ड स्टेप में बताऊंगा कि इनको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जहां कुछ कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। और यहां पर ऐसा भी हो सकता है s-1 इंटू s-2, तो s-2 की पावर 1 है, वो नॉन रिपीटेड है, तो वो प्रोसेस अप्लाई करके इसको उस तरह से बनाना है आपने, ठीक है। तो इन ऑल अदर केसेस इक्वेट द गिवन फ्रैक्शन टू द सम ऑफ सुटेबल पार्शियल फ्रैक्शंस इन अकॉर्डिंग्स विद 1 to 4 above, having found the partial fractions corresponding to non repeated linear factors। अब मैं एक आपको कंप्लेक्स प्रॉब्लम दे रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या है, 5s+3 डिवाइडेड बाई s-1 एंड दिस वन इज ए क्वाड्रेटिक, दिस वन इज लीनियर, तो इसके पावर भी 1 है, पावर भी 2 नहीं है, पावर 1 है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे, a डिवाइडेड बाई s-1 1 एंड bs प्लस c डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। और आपका पर्पस क्या है, a b c कैलकुलेट करना। अब देखिए इसकी पावर 1 है तो आप a तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, वहां पर आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे जहां s-a पावर 2 है, पावर 3 है, उसके लिए मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा क्या प्रोसेस होगा। लेकिन अगर पावर 1 है तो आप यहां पर ये कैलकुलेट कर सकते हो, और ये कैलकुलेट उस प्रोसेस से नहीं होगा क्योंकि यहां bs प्लस c की फॉर्म में रिजल्ट को दे रखा हुआ है, क्लियर। अब देखिए यहां पर कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने s इज इक्वल टू 1 इस पूरे एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है एक्सेप्ट s-1, इस फैक्टर के अलावा सब जगह सब्स्टिट्यूट करना है। करिए आप सब्स्टिट्यूट, s इज इक्वल टू 1, सो 5 इंटू 1 प्लस 3, ओके, डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 5 दिस, and 1 over s-1 as it is and this term as it is। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखो, आएगा 1, so 1 over s-1 plus bs plus c divided by s square plus 2s plus 5। तो अब इसके आगे इस टाइप की प्रॉब्लम के बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं, बाकी जो कांस्टेंट्स हैं, वो कैसे इवैल्यूएट करने हैं, वो हमारा थर्ड स्टेप बताएगा, ठीक है। बट यहां तक क्लियर होना चाहिए कि कैसे आप फैक्टर बना रहे हो और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जहां आप a b c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वो सिर्फ वहीं पे कैलकुलेट कर पाओगे जहां नॉन रिपीटेड लीनियर टाइप की टर्म्स आ रही हैं, अदरवाइज बाकी प्रोसेस में करते जाइए और उसके बाद जो थर्ड स्टेप मैं बताने जा रहा हूं वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो थर्ड स्टेप इज देन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय द डिनोमिनेटर। अब देखिए इसमें आप वैसे ए बी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने नॉन रिपीटेड फैक्टर्स में, लीनियर फैक्टर्स में बताया है, ठीक है। यहां पर क्या करना है, इस पूरे प्रोसेस में ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स लगी हुई हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फंक्शन फ्रैक्शन and equate the coefficient of the powers of s or substitute the convenient numerical value of s on both sides। इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये आपका एक्सप्रेशन ये बन गया। एक एग्जांपल, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके मैं चल रहा हूं, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट बन गया। उसके बाद क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ पावर्स ऑफ s एंड सब्स्टिट्यूट द कन्वीनिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू। तो पहले हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पावर्स ऑफ s, ठीक है। तो यहां इसके बाद a और b की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है, एंड लास्ट स्टेप इज फाइनली सॉल्व द सिंपलेस्ट ऑफ द रिजल्टिंग इक्वेशन टू फाइंड द अननोन्स। अब मैं इस प्रॉब्लम में दिखाता हूं कि ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है इसका क्या मीनिंग है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर हियर, यहां 0 है, यहां s स्क्वायर a आ जाएगा और यहां से s स्क्वायर से -1/3 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 1/3 आ गई। एक तो ये कर दिया। इसका क्या मीनिंग है, सब्स्टिट्यूट द कन्वीनिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू, पुट s इज इक्वल टू 1, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, s इज इक्वल टू 1, सो 4 इंटू 1 प्लस 5 9 इज इक्वल टू 3 s 1 plus 2 3b, so b is equal to 3। so in this way you can calculate the values of the constants, जो कि आप उस तरह से नहीं निकाल पाएंगे जैसे मैंने कुछ प्रोसेस आपको पहले बताए हैं, ठीक है। वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में तो आप कैलकुलेट कर पाओगे, लेकिन जहां इस टाइप की टर्म्स आ रही हैं वहां पे आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्लियर। और यहां पर भी देखिए ये s+2 है, ठीक है, तो s+2 है, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो क्योंकि वो रिपीटेड नहीं है, तो कैसे निकालोगे, पुट s इक्वल टू -2 एवरीवेयर एक्सेप्ट हियर, क्लियर। तो कैसे आएगा, 2 इंटू -2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई -2 -1 स्क्वायर s+2, क्लियर। इसको सॉल्व कर लिया तो आपका रिजल्ट आ गया। तो जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है वहां तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, बट रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स और क्वाड्रेटिक लीनियर फैक्टर उसमें आप नहीं निकाल पाएंगे, क्लियर। सो let us solve few problems related to this whole concept. Find the inverse Laplace transforms of s square minus 3s plus 4 divided by s cube
and second one is s plus 2 divided by s square minus 4s plus 13. Now in first problem we can write this expression like this way: L inverse 1 over s, right, minus 3 L inverse 1 over s square plus 4 L inverse 1 over s cube. Okay, use this L inverse 1 over s is 1, so 1 minus 3 as it is, and use this expression L inverse 1 over s power n is equal to t n minus 1 divided by n minus 1 factorial. So apply here as well as here, you will get this one is the value of this inverse Laplace transform. तो आपके जो भी इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, ठीक है, जो आपने अभी पहली 2 स्लाइड्स में देखे हैं, वो आपने यूज़ करके इसको सॉल्व करना है. सिमिलरली सेकंड प्रॉब्लम, okay, in second problem what happened, L inverse this is result is L inverse s plus 2 and denominator is this, okay, and here this can be written as s minus 2 plus 4, okay. So this expression can be written like this way, right, denominator as it is. तो इसके आपने 2 फैक्टर बना लिए, s minus 2 divided by denominator and 4 divided by s minus 2 square plus 3 square second. This one is second, this one is first. अब use this expression L inverse s minus a divided by s minus a square plus b square, use here, okay, we get e raised power at cos bt, and in second case L inverse 1 over s minus a square plus b square, which is equal to 1 over b e raised power at sin bt. So use these standard results and write the value of this inverse Laplace transforms. Now in next problem, 2s square plus 6s plus 5 divided by s cube plus 6 minus 6x square plus 11s minus 6. This one is the first problem, and second is 4s plus 5 divided by s minus 1 square into s plus 2. तो देखिए हमारे पास पहले डिनोमिनेटर के आपने लीनियर फैक्टर बनाए, ठीक है, ये 3 लीनियर फैक्टर बन गए, ठीक है, और उसके बाद जब 3 लीनियर फैक्टर बन गए, then use the method of partial fractions. So here we can write like this way: a over s minus a plus b over s minus 2 plus c over s minus 3. Clear? And then find the value of abc. ये मैंने जब मैं ये कंसेप्ट आपको बता रहा था तो वहाँ मैंने यही प्रॉब्लम लेकर के चला था, और वहाँ आपने देखा था कि a कैसे कैलकुलेट करते हैं, b कैसे कैलकुलेट करते हैं, c कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. सो s इज इक्वल टू a आपने सब्स्टिट्यूट करना है, एक्सेप्ट दिस फैक्टर. s माइनस 2 आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, एक्सेप्ट दिस फैक्टर, एंड s माइनस 3 आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, एक्सेप्ट दिस फैक्टर टू कैलकुलेट फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ abc. जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे और इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स इस फंक्शन का ले लोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ओके. और यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड जो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस आपने देखे हैं, वो आपने यूज़ करके आपने ये जो है आंसर इवेलुएट करना है. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि L इनवर्स 1 ओवर s माइनस 1 क्या होता है, e रेज्ड पावर t. क्लियर? L इनवर्स 1 ओवर s माइनस 2 क्या होता है, e रेज्ड पावर माइनस 2t. L इनवर्स 1 ओवर s माइनस 3 क्या होता है, e रेज्ड पावर 3t. ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए, फिर आप ये सारी प्रॉब्लम्स कर सकते हो. सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, ये डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फ्रैक्शंस बना के रखे हुए हैं, ठीक है. अब इसको लिखना कैसे है, ये आपके रिपीटेड फैक्टर्स हैं, लीनियर है, रिपीटेड है, ठीक है, और ये लीनियर है, रिपीटेड नहीं है, ठीक है. तो यहां जब रिपीटेड है तो लिखा जाएगा a ओवर s माइनस 1 प्लस b ओवर s माइनस 1 स्क्वायर. क्लियर? अब यहां a b वैसे नहीं निकलेगा जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं. और c ओवर s माइनस 2 लिखा जाएगा, c ओवर s माइनस 2, वो जो c है वो निकल जाएगा क्योंकि ये नॉन रिपीटेड फैक्टर है. और वो कैसे निकलेगा, पुट s इज इक्वल टू माइनस 2 एवरीवेयर एक्सेप्ट दिस, ठीक है. 4 इंटू माइनस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर s प्लस 2. क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट c हियर इटसेल्फ, ओके. तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सिंप्लीफाई होगी. उसके बाद का प्रोसेस कैसे करना है, इसमें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस डिनोमिनेटर, ओके. आपने ये नोट किया होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन एंड इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ पावर्स ऑफ s और सब्स्टिट्यूट द कन्वीनिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ s ऑन बोथ साइड. ये कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे यूज करना है. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट ये बनेगा. And then equating the coefficient of s square, we get a is equal to 1 by 3, and by substituting the convenient numerical value of s, means by putting s is equal to 1, you will get b is equal to 3, okay. और जब ये वैल्यू आ जाएगी तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन तो बन जाएगा, ठीक है. उसके बाद आपको सॉल्व करनी है प्रॉब्लम. सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप ये प्रॉब्लम को ये फार्मूले लगा करके इसको आप लिख सकते हो.
तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बस जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो यही है कि पार्शियल फ्रैक्शंस को लिखना कैसे है और उनकी जो कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यू को कैसे इवैल्यूएट करना है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, 5s plus 3 divided by s minus 1, s square plus 2s plus 5, and second one is s over s4 plus 4a power 4. Okay. अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस ऑलरेडी दे रखे हुए हैं, s minus 1 into s square plus 2s plus 5. अब इसको कैसे लिखना है? देखिए ये तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो a over s minus 1, ठीक है। ये नॉन रिपीटेड है तो a निकल आएगा, ठीक है। प्लस ये क्वाड्रेटिक है, bs plus c डिवाइडेड बाई s square plus 2s plus 5. ओके, अब देखिए इसी को मैं a की वैल्यू को अब लिखने जा रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो कैसे निकलेगा? s is equal to put s is equal to 1 everywhere except this factor, right? So 5 into 1 plus 3 divided by 1 square plus 2 into 1 plus 5, 1 over s minus 1, and this term as it is. So we obtain ultimately a is equal to 1. Clear? So we get this linear factor. Okay. Now purpose is to evaluate the value of b and c. ठीक है, अब वो मेथड नहीं चलेगा जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ दिस डिनोमिनेटर, ओके, वी गेट दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, you will get b is equal to -1 and put s is equal to 0, you will get c is equal to 2. तो आपने यहाँ पे आप देख लेना कि क्या वैल्यू s की सब्स्टिट्यूट करें कि किसी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए, या कौन सा हम कोएफिशिएंट जो है s का, ठीक है, किस पावर का कोएफिशिएंट को हम कंसीडर करें ताकि एक नया जो हमारे पास कांस्टेंट है वो आ पाए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे ये चीजें जो है वो इवैल्यूएट आपने करनी है। एंड आफ्टर इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स यू विल गेट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स, ओके। L इनवर्स 1 over s minus 1 plus L इनवर्स minus s plus 2 divided by s square plus 2s plus 5. और ये जो रिजल्ट्स हैं इनको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लो, ठीक है, ताकि कोई ना कोई फार्मूला बन पाए, ठीक है। ये टर्म्स आप एज इट इज लिख रहे हो, यहाँ पर आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, और इसके दो फैक्टर्स बना लिए हैं, s plus 1 over this and 1 over this, और यहाँ पर इसके बाद आपने सॉल्व किया है। वी नो L इनवर्स 1 over s minus 1 is e raised to power t, okay, and we know this L inverse s minus 1 s plus 1 square plus 2 square is e raised to power minus t cos 2t. Clear? We know L inverse 1 over s plus 1 square plus 2 square is e raised to power minus 2t sin 2t divided by 2, so 3 divided by 2. So this one is the inverse Laplace transforms. So in this way you can evaluate these type of problems. Now second में क्या है? Second मैंने आपको पहले ही partial fractions बताया हुआ है, ठीक है। इसके दो partial fractions बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा denominator के, ठीक है, और वो क्वाड्रेटिक इन नेचर होंगे। जब क्वाड्रेटिक इन नेचर है तो आप इस तरह से इस फैक्टर्स को लिख सकते हो, राइट। ए एस प्लस बी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2a स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी डिवाइडेड बाई दिस, ओके। अब ए बी सी डी को कैसे इवैल्यूएट करना है? सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई दिस डिनोमिनेटर, दैट वन इज द थर्ड स्टेप, ओके। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, क्लियर। अब यहां से आपने कैसे ए बी सी डी को वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या किया, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ s here s cube, here s square, you will get this expression, equating the coefficient of s we get this third expression, and putting s is equal to 0 we get this expression 1 2 3 and 4, okay. Now from this expression 2a, this 2a and here 0 cancel, so b plus d, so b plus d is equal to 0, okay. From second is this, okay. Now b plus d, so this b plus d 0, so we get minus 2a plus 2ac, तो 2a कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट बनेगा माइनस a plus c, so minus a plus c, okay. And by 1 means a plus c is equal to 0, so by virtue of these two equations we get a 0 c 0, and now third is this, clear. Third reduces to this d minus b, clear. तो देखिए यहां से ये रिजल्ट आएगा 1 over 2a, and from fifth result is this one, from fifth one is this one, so from fifth b is equal to minus 1 over 4a and d is equal to 1 over 4a, तो ये वैल्यू आएगी और a और c की वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी। तो आप फिर आराम से ये जो पार्शियल फ्रैक्शंस है वो आप लिख सकते हो, एंड नॉट टेकिंग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स, ओके। तो आपका इस टाइप से रिजल्ट बनेगा, ठीक है ना। a और b की a b c d की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली हुई है, ठीक है।
तो यहाँ पर 1 over this, 1 over this, 1 over 4a, 1 over 4a common, right? And use the concept of standard inverse Laplace transforms formula. We get minus 1 over 4, 1 over a e raised power minus at sine at, and second one is 1 over 4a, 1 over a e raised power at sine at, and simplify, you will get finally this 1 over 2a square sine at sine hyperbolic at. So in this way you can calculate few more problems related to this inverse Laplace transforms. ठीक है, तो आप जब डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तभी ये कंसेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, तो आज का टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है, तभी आप कोई भी प्रॉब्लम जो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है वो आप कर पाओगे. ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट.